Hello smart minds, welcome back to another session of grade 8 mathematics for you, and we are going to start with the new chapter number 10, that is exponent and powers. तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लेकर आए हैं आपके लिए एक छोटा सा वार्म अप, जो चीज़ें हम ऑलरेडी सीख चुके हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? You have to write it in exponential form. 2 is coming 4 times, we'll write 2 raised to the power 4. Similarly, this is minus 3 raised to the power 5. And when you have to break these numbers, इनके हम prime factors निकालेंगे और उसके बाद हम इसको exponential forms में लिखने वाले हैं. Okay. Next question is you have to find the value. तो अगर minus 2 3 times multiply करेंगे हमें मिलेगा minus 8. एंड सिमिलरली यहाँ पर पावर हमारी इवन है तो हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा. इट विल बी 625. एंड इन दिस वे यू सॉल्व द अदर क्वेश्चंस. नाउ कमिंग टू थर्ड क्वेश्चन, 2 raised to the power 3 क्या होता है? 2 multiply 2 8 and 3 square is 9. So obviously this number is greater. Similarly we write down 2 multiply 3. अगर हम यहाँ पर 6 की पावर 3 लिख सकते हैं इसको, और यूजिंग द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, और ये भी 6 की पावर 3 है तो यहाँ आएगा साइन ऑफ इक्वालिटी. एंड व्हाट इज 5 raised to the power 0? दैट्स ऑलवेज 1. और यहाँ पर आपका आंसर आएगा नेगेटिव में. एंड यू नो 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन अ नेगेटिव नंबर. बिना कैलकुलेशन के हमें आंसर मिल गया. Now we are going to apply the laws of exponent here. यहाँ पर 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4, तो ये बना 3 raised to the power 9 divided by 3 raised to the power 3. That will give you 3 raised to the power 6. And here 1, any number raised to the power 0 is 1, plus 1 that becomes 2. तो हम इसको 2 की पावर 4 लिखेंगे, which is equal to 16. Got it? And here again you are going to solve it and you will get the answer. यहाँ पर -3 की पावर 4 है और यहाँ 3 की पावर 4 है, दोनों का रिजल्ट सेम होगा. एंड हेयर 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 4 है, तो हमें 2 की पावर 1 मिलेगा न्यूमरेटर में, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 5. अब आप इसको सॉल्व कर देंगे. यहाँ क्वेश्चन है, आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. सो विल राइट 2 5 2 8 एंड बीच में पावर 1 का नंबर मिसिंग है, सो 0 and then this is 9. Got it? This is your answer. So come here, we are going to start with integers and its exponent. So children, we know that if any number is multiplied by itself repeatedly, then their product is expressed in the exponential form. Suppose हमने लिखा 3 multiply 3 multiply 3 multiply 3, ये बन गया 3 की पावर 4. अब यहाँ 3 बेस है और जो पावर है वो है 4, राइट? एंड वी से इट इज 3 raised to the power 4. नाउ वी टॉक अबाउट पॉजिटिव इंटीजर एक्सपोनेंट. दैट मीन्स अगर हमें कोई भी नंबर्स दिए हैं वो पॉजिटिव हैं तो उनकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी. एंड सिमिलरली अगर हमने -3/5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो वो बन जाएगा -3/5 raised to the power 3. So in other words, if a/b is any rational number and n is any natural number which is a positive integer, तो हमने अगर a/b को n टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो हमें रिजल्ट मिलेगा a/b raised to the power n. So a/b is the base and n is the power. लेकिन जब हम बात करते हैं नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट की, तो नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट का मतलब होता है वी विल टॉक अबाउट द रेसिप्रोकल. अगर मैंने लिखा रेसिप्रोकल ऑफ 9, इसका मतलब 1/9. और 9 क्या है? 9 is 3 multiply 3, so we can write 1/3 square. अब 1/3 square, ये 3 square डिनोमिनेटर में आ रहा है, अगर हम इसको न्यूमरेटर में लाएंगे तो ये पावर नेगेटिव हो जाएगी. इट बिकम्स 3 raised to the power -2. Got it?
And now if I write 3 raised to the power minus 2, here we read the power as a negative power, that is minus 2 is the power. इसका मतलब अगर कोई x की पावर n हमें दिया हुआ है और उसका रेसिप्रोकल लिखना है, it will be 1 upon x raised to the power n, and it could be written as x raised to the power minus n, right? Similarly, अगर मुझे a upon b की पावर n का रेसिप्रोकल लिखना है तो वो हो जाएगा a upon b की पावर minus n, and it could be written as b upon a. Okay? So remember, अगर हमें a upon b कोई भी नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर दिया है where n is any positive integer, then a upon b raised to the power minus m is equal to b upon a raised to the power m. It could be written as b raised to the power m upon a raised to the power m. Got it? So I take the example 1 upon 2 raised to the power 5. We can write it as 2 raised to the power minus 5. Okay? Similarly, if I have 1 upon 2 raised to the power minus 5, इसका reciprocal हो जाएगा 2 raised to the power 5. Okay? Similarly, अगर हमें दिया हुआ है 3 की पावर माइनस 4, तो 3 की पावर माइनस 4 को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 3 रेज टू द पावर 4, और यहाँ पावर आपकी पॉजिटिव हो जाएगी. अंडरस्टूड? नाउ लेट्स मूव अहेड, and to convert a rational number into the exponential form or exponential form into a rational number, we have to keep certain things into mind. अब वो क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है? फर्स्ट थिंग, अगर x को n टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वी विल राइट इट एज x रेज टू द पावर n. ओके, जितनी बार x आ रहा है यहाँ m टाइम्स आ रहा है तो हम लिख देंगे x रेज टू द पावर m. अगर x की पावर माइनस m दिया है, इसका मतलब वो हो जाता है 1 अपॉन x की पावर m, एंड इट विल बी 1 अपॉन x रेज टू द पावर m. सिमिलरली, कोई भी अगर हमें -1 की पावर n दी हुई है तो n हमारा इवन है या ऑड है, उस पर हमारा रिजल्ट डिपेंड करता है. अगर n इवन है तो आंसर हमारा पॉजिटिव होगा, और n अगर ऑड नंबर है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, तो हमारा आंसर हमेशा -1 आएगा. एंड एनी नंबर रेज टू द पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1. सो लेट्स डू द एग्जाम्पल नाउ. एक्सप्रेस द फॉलोइंग पावर नोटेशंस एज रैशनल नंबर्स. हमने लिया -3 अपॉन 2 रेज टू द पावर 4. इसका मतलब -3 अपॉन 2 को हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एंड आंसर विल बी अ पॉजिटिव नंबर. यहाँ हमने -1 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई किया. 7 इज अ ऑड नंबर, सो योर आंसर विल बी -1. Next question is express the following rational numbers into power notation. We have the first question, -81 upon 128. -81 के factors बनाए हमने, that comes out as -3 coming 4 times, तो हमने लिखा -3 की पावर 4. ऐसे ही 128 के factors बनाए, we get 2 raised to the power 7. So your answer becomes -3 raised to the power 4 upon 2 raised to the 7. एंड ध्यान से देखेंगे, पावर पॉजिटिव है तो नंबर अगर पॉजिटिव हो जाता है इट डजंट मेक अ डिफरेंस, सो वी राइट 3 रेज टू द पावर 4 अपॉन 2 रेज टू द पावर 7. दैट बिकम्स योर फाइनल आंसर. सिमिलरली, हमें एक नंबर दिया है 32, एंड व्हेन यू ब्रेक 32 इट विल बी 2 कमिंग 5 टाइम्स, सो योर आंसर विल बी 2 रेज टू द पावर 5. एंड सिमिलरली -1 को हम -1 की पावर 5 लिख सकते हैं. So -1 upon 32 will be written as -1 upon 2 raised to the power 5. Now next question is you have to find the value. पहली चीज़ हमें दी है 3 square minus 2 square. So when you solve 3 square minus 2 square, it will be 9 minus 4, which comes out as 5, and divided by 1 upon 5 raised to the power 2. तो जब हम 1 अपॉन 5 लिखेंगे रेज टू द पावर 2, इट विल बी 1 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर, एंड ये 5 स्क्वायर हमारा बन जाएगा 25, और ये 25 हमारा 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, सो दिस विल बी 125. गॉट इट?
Now we come to next example. Here we have 1 upon 2 raised to the power 2 minus 1 upon 4 raised to the power 3. तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 2 क्यूब दिया है. तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट किया 1 अपॉन 4 में, इसको कन्वर्ट किया 1 अपॉन 64 में, एंड 2 क्यूब इज मल्टीप्लाई 8. सो 8 से इस टर्म को मल्टीप्लाई किया, इट बिकम्स 2, एंड ऐसे ही 8 से इस टर्म को मल्टीप्लाई किया, ये बना 1 अपॉन 8. और अब हम इसका LCM 8 लेकर सिंप्लीफाई करेंगे, वी गेट 15 अपॉन 8. अब हमने इसका रेसिप्रोकल लेना है, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 8 अपॉन 15. राइट. नाउ कम टू नेक्स्ट एग्जाम्पल. फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन 3 रेज टू द पावर माइनस 4. सो व्हाट विल यू डू? You are going to solve it. 1 upon 3 raised to the power minus 4, it will be equal to 81. So 81 is the correct option. Got it? Similarly, you have to find the value of minus 5 raised to the power minus 4. Power minus 4 का मतलब 1 upon में आ जाएगा, and your answer will be solving it. We get 1 upon 625. So A is the correct option. Now try doing this exercise. इस exercise के सारे questions try करेंगे और आगे आते हैं हम laws of exponent with integral powers. So here in the previous class we have already learned about the laws of exponents and we are going to recall them. तो अभी तक हमने सीखा था कि x की पावर m मल्टीप्लाई y की पावर m है, बेसिस आर डिफरेंट, पावर्स आर सेम, तो हम बेस को मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी गेट x मल्टीप्लाई y रेज टू द पावर m. सिमिलरली अगर x अपॉन y रेज टू द पावर m दिया है, दैट मीन्स x की पावर m डिवाइडेड बाय y की पावर m. एंड इफ x इज एनी रैशनल नंबर other than 0 and m and n be any two positive integers, यहाँ हमने x की पावर m मल्टीप्लाई x की पावर n लिखा. देखो डिफरेंस क्या है, यहाँ बेस सेम है, यहाँ बेस डिफरेंट है, यहाँ पास डिफरेंट है, यहाँ पास सेम है. दैट्स द डिफरेंस. ओके, तो हमने क्या किया, बेस को लिखा एंड पावर्स को यहाँ ऐड कर दिया. इट बिकम्स x रेज टू द पावर m प्लस n. Similarly, x raised to the power m raised to the power n will become x raised to the power m multiply n. And if x raised to the power m is divided by x raised to the power n, तो m minus n हो जाएगा and we get x raised to the power m minus n. Similarly, if it is x raised to the power minus m, it will be 1 upon x raised to the power m, which will be 1 upon x whole raised to the power m. And if a is any non-zero rational number, then a raised to the power 0 will always be equal to 1. अब इसके ऊपर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं. We'll take the example minus 2 upon 3 raised to the power minus 3 multiply minus 2 upon 3 raised to the power 6. Base is same, right? So we'll put the base and we are going to add the powers. Minus 3 plus 6 is 3. So we get minus 2 upon 3 raised to the power 3, which will be equal to minus 8 upon 27. So C part is the correct option. Next example, express the following into single exponential notation. So first one is minus 4 upon 5 raised to the power minus 10 minus 4 upon 5 raised to the power 15 are multiplied and then it is divided by minus 4 upon 5 raised to the power 9. तो ये दोनों पावर्स ऐड होंगी और ये पार्ट से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. कैसे लिखेंगे इसको? वी आर गोइंग टू राइट minus 10 plus 15 and minus 9. दैट विल गिव यू minus 4 upon 5 raised to the power 4. नेक्स्ट एग्जाम्पल में 3 upon 2 raised to the power 33 divided by 2 upon 3 raised to the power minus 35. यहाँ हमने ऑब्जर्व किया ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है. तो पहला काम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल लिखकर पावर नेगेटिव से पॉजिटिव बन जाएगी. ओके, नाउ वी आर डिवाइडिंग विद द सेम बेस. सेम बेस होना इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर आपका लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई हो जाएगा. सो वी राइट डाउन 3 upon 2 raised to the power 33 minus 35 and then we get 3 upon 2 raised to the power minus 2. Now coming to the next one, we have to simplify
4 रेज टू द पावर -1, इसका मतलब ये बन गया 1/4। 8 रेज टू द पावर -1 बन गया 1/8 डिवाइडेड बाय 3/2, यहाँ पर रेज टू द पावर -2 था, इसका रेसिप्रोकल लिखा हमने 3/2 होल स्क्वायर। सो वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। यहाँ पर हमने डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया, 8 आया, इसको सॉल्व किया, डिवाइडेड बाय 3/2 स्क्वायर। सो वी गेट 3/8 डिवाइडेड बाय 9/4 and 3/8 multiplied by 4/9. So we get this answer. Coming to B part, 5 raised to the power -1 multiply 5 raised to the power -19। यहाँ पर बेस सेम है, इसका मतलब बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, एंड होल रेज टू द पावर 2 दिया हुआ है तो -20 रेज टू द पावर 2 multiply -5/2 रेज टू द पावर 40। So this becomes 5 raised to the power -40 multiply -5 raised to the power 40, और यहाँ पर इसका जो डिनोमिनेटर था 2 raised to the power 40 नीचे आ गया, तो ये दोनों वैल्यूज़ हमारी कैंसिल हो गई। 5 की पावर 0 हो गया, -1 की पावर 41 हो गया, 2 की पावर 40 डिनोमिनेटर में आया। So we are left with 5 raised to the power 0 multiply 1/2 raised to the power 40, and finally this becomes your answer. Got it? Now let's move further. एक और example लेते हैं। By what number -9 raised to the power -1 should be multiplied so that the product may be equal to -12 raised to the power -1. So let's say the product is -12 raised to the power -1, और हमें एक नंबर दिया हुआ है -9 raised to the power -1। तो जो सेकंड नंबर है वो निकालने के लिए प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय फर्स्ट नंबर, तो हमने लिखा -12 रेज टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय -9 रेज टू द पावर -1, एंड वी एक्सप्रेस इट मैथमेटिकली, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे वी गेट 3/4। सो दिस इज द रिक्वायर्ड नंबर। वी राइट -9 इनवर्स should be multiplied by 3/4 to get -12 raised to the power -1. Take next example. If 3/4 raised to the power -6 is multiplied by 4/3 raised to the power -8 is equal to 3/4 raised to the power n. So you need to know the value of n, and let's see how to solve it. सबसे पहले हमने पूरे एक्सप्रेशन को लिखा, 3/4 raised to the power -6 multiply इसका रेसिप्रोकल लिया तो ये बना 4/3 raised to the power 8, तो ये डिनोमिनेटर में आ गया, हमने इसको लिखा 1/4/3 raised to the power 8 is equal to 3/4 raised to the power n। अब कैसे लिखेंगे, ये भी 3/4 है, ये भी 3/4 है, और इसका हमने 4/3 बनाया, इसका रेसिप्रोकल बना, दैट बिकम्स 3/4, तो हमने इसको इस तरह से लिखा 3/4 रेज टू द पावर -6 3/4 रेज टू द पावर 8 इज इक्वल टू 3/4 रेज टू द पावर n। अब बेस सेम हो गए तो हमने अप्लाई किया लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, 3/4 रेज टू द पावर -6 + 8 इज इक्वल टू 3/4 रेज टू द पावर n, एंड n की वैल्यू हमें मिल गई 2। गॉट इट? एंड नाउ वी हैव अ एक्सरसाइज। अब इस एक्सरसाइज को आप सॉल्व करेंगे यूजिंग ऑल लॉज ऑफ एक्सपोनेंट एंड द एग्जाम्पल्स विच वी हैव डन। वी कम टू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 2/-3 रेज टू द पावर -6। अब पावर 6 है, इवन नंबर है, तो नंबर आपका पॉजिटिव होगा, एंड बिकॉज नेगेटिव पावर है इसलिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बनेगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बनेगा। सो 2 की पावर 6 होता है 64। सो विदाउट डूइंग कैलकुलेशन सी विल बी योर आंसर। अब हम आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर। तो पहले हम इसकी नेगेटिव पावर्स हटाएंगे, इट विल बिकम -4/3 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 9² / 4², राइट। अब हमने इसको कैंसिल करना है, कैसे? यहाँ पर 3 की पावर 3 है, और अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये बन जाएगा 3 की पावर 6, ओके। एंड 3 की पावर 6 हमारा न्यूमरेटर में आया, मल्टीप्लाई बाय -4 की पावर 1 न्यूमरेटर में बचा, डिनोमिनेटर में हमारे पास कुछ भी नहीं बचा,
तो कैलकुलेशन करते बिना हमें -96 आंसर मिल गया. In this way you can try the next question. So you are going to change the power of negative first. ये बन जाएगा 2 square, ये बनेगा 3 square upon 4 और ये बना हमारे पास which is 4 square, 16 upon 3 square, that's 9 and denominator will be 36. अब आप इसको solve कर सकते हैं. Okay, now we have next question. यहाँ पर 3 inverse, that means 1 upon 3 plus 1 upon 4 and divided by 1 upon 5. इसको इस तरह से solve करेंगे. Similarly हम आते हैं 5th question पर. तो 5th question में हमें missing value of x निकालनी है. कैसे solve करेंगे इस question को? Denominators are same, तो हमने लिखा 5 upon 12 raised to the power -4 plus 3x. तो इक्वेशन बनेगी -4 plus 3x equals 5 and 3x की वैल्यू हो जाएगी 5 plus 4, that is 9 and x will be equal to 3. So this will be your answer. Got it? And this way we have completed the chapter. So we'll be meeting again. Till then, take care of yourself. Namaste.